Hello guys, myself Chaitanya Kulte, and today we are back with engineering mechanics. And when I'm concerned with engineering mechanics, so today our focus will be on beams topic, and beams topic is expected to be asked for 8 marks. And when you're concerned with 8 marks, try to get the 3 marks first, and after that 5 marks. For that, structure is important. Your free body diagram is important, and free body diagram एक बार sort हो गया so then everything will be simple. Okay, for free body diagram we need to have some knowledge of the basics of the beams. So I'll give you the rough knowledge of the beams, that is basics of the beams, that is nothing but types of support, types of uh, and types of load. Okay, so this is the basics of the beams. Without wasting any further time, we'll start with the basics of the beam. Now when I'm concerned with basics of the beam, there are types of load. The simplest type of load is nothing but it's a point load. When you're concerned with point load, I'm taking, for representing the same, I'm taking a simply supported beam. सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब ये जो मैंने ड्रॉ किया है दैट इज नथिंग बट द स्पैन ऑफ द बीम. एंड सिंपली सपोर्ट मतलब एंड सपोर्ट रहेगा, जैसे इधर एंड सपोर्ट है ए और बी. ए बी इज द स्पैन ऑफ द बीम, so this is nothing but the span of the beam, span, and it is having end support, that is RA and RB end supports है. और when we are concerned with the point load, तो point load कैसे रहता है, ये point load है, simplest type of load, 10 किलो न्यूटन का 30 डिग्री पे inclined, it's a point load. When you are concerned with this is the 20 kilo Newton point load. When you are concerned with the point load, it has point load को दो part important है, that is nothing but the magnitude of the point load and point of action of the point load. Okay, now when I'm concerned with this point load, so it has a magnitude of 10 kilonewton and point of action, चलो आई एम टेकिंग ए से ये कुछ 4 मीटर पे है या फिर बी से ये कुछ 6 मीटर पे है. सो दैट्स द पॉइंट ऑफ लोकेशन, पॉइंट ऑफ एक्शन, sorry, point of action. When I'm concerned with this 20 kilonewton load, its magnitude is 20 kilonewton. You can take this as 2 meter, and the point of action from A, it is 8 meter. So when I'm concerned with the first type of load, it's the simplest type of load, that is nothing but point load. ठीक है, तो आपको सिंपल में सब कन्वर्ट करना है. Okay, now when I'm concerned with the second part, that is UDL, that is uniformly distributed load. So again, to represent the same, I'll take a simply supported beam. I've taken the simply supported beam AB. Okay, it has an end support, that is RA and RB, and there is a C point located at a distance of 4 meter, and 6 meter from A and B respectively. So there is a C point over there, and UDL कैसे represent होता है देखना, ये speed breaker जैसा है, that's a UDL. Okay, UDL represent होता है UDL intensity से. So 10 kilonewton per meter is nothing but the UDL intensity. I'll write over here, this is the UDL intensity. Okay, तो ये UDL intensity है. मतलब UDL का अगर देखा जाए तो स्पैन है 6 मीटर एंड द इंटेंसिटी इज किलो न्यूटन पर मीटर. नाउ अगेन ओवर हियर यूनिट्स प्ले अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर. तो ये इधर देखना, किलो न्यूटन पर मीटर या फिर न्यूटन पर मीटर, पर मतलब डिवीजन में मीटर है. ओके, पर मीटर is nothing but the UDL intensity, and the span of the UDL is 6 meters. Okay, or else the length of the UDL is 6 meter. तो इसको आपको सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लोड में कन्वर्ट करना है, तो जो सिंपल है वो पहले लिख दो, एज इन इसका इक्विवेलेंट कैसे आ जाएगा वो भी सिंपल है. there is a point A B, it is the span of the beam and supports है, it is and supports है. there is a C point at a distance of 4 meter from A and 6 meter
from B and the span of the beam is 10 meter. Okay, now again I am concerned with how to convert a UDL into a point load. तो एक फोर्स है, वो दो चीजों से जाना जाता है, एक तो पॉइंट ऑफ एक्शन एंड द सेकंड इज मैग्नीट्यूड. तो पॉइंट ऑफ एक्शन यूडीएल का सेंटर ऑफ यूडीएल है. ठीक है, मतलब यूडीएल अगर 6 मीटर का है तो उसका सेंटर 3 मीटर, 10 मीटर का है तो उसका सेंटर 5 मीटर. सो दैट्स द पॉइंट ऑफ एक्शन. एंड व्हेन आई एम कंसर्न्ड विद द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का एक सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज नथिंग बट यूडीएल इंटेंसिटी. मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट इज द यूडीएल इंटेंसिटी. यूडीएल इंटेंसिटी इनटू द लेंथ ऑफ द यूडीएल, लेंथ ऑफ यूडीएल. सो दैट्स द फॉर्मूला for getting the magnitude of a point load which is resolved from a UDL. ठीक है, तो ये देखना, इसका सेंटर मैंने प्लॉट कर दिया, तो इट इज 3 मीटर. एंड अभी ये भी देखना, क्योंकि यूनिवर्सिटी बेसिक में ही खेलती है, बीम्स है या फिर कोई भी सब, तो कोई भी टॉपिक है ये बेसिक में ही खेलेगी, तो इसीलिए आपको ये याद रखना है. समझो ऐसा वाला यूडीएल है तो डाउनवर्ड पॉइंट लोड आ जाएगा. इन केस ऐसा वाला यूडीएल है तो अपवर्ड पॉइंट लोड आएगा, इसीलिए आई एम टेकिंग अ डाउनवर्ड पॉइंट लोड. ओके, एंड अबाउट द मैग्नीट्यूड, अभी पॉइंट ऑफ एक्शन तो सॉर्टेड है, नाउ अबाउट द मैग्नीट्यूड. व्हेन आई एम कंसर्न्ड विद द मैग्नीट्यूड, नाउ सी ओवर हियर, when I'm concerned with the magnitude, तो see over here UDL intensity. तो UDL intensity क्या है, 10 kilonewton per meter, and the length of into the length of the UDL, and the UDL length कितना है, 6 मीटर. तो इसको अगर फॉर्मूला में डाला जाए तो UDL intensity is 10 kilonewton per meter into length of UDL is 6 मीटर. तो मीटर कट होके ये 60 किलो न्यूटन हो जाता है. सो इट्स अ 60 किलो न्यूटन लोड. If you are clear how to resolve a UDL into a point load, that's the strategy how to मतलब एक UDL कैसे जाना जाता है with the help of point of action and magnitude. तो point of action उसका सेंटर है and the magnitude is nothing but UDL intensity into length of UDL. या फिर और सिंपल भाषा में रखा जाए तो डायरेक्ट 6 into 10 कर देना, 60 आ जाएगा. अगर ये 8 है, ये 10 है, तो 80 आ जाएगा. ओके, नाउ अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ लोड, दैट इज अ रेक्टेंगुलर यूडीएल. रेक्टेंगुलर यूडीएल, ये नेम से आपको समझ रहा रहेगा कि ये रेक्टेंगल जैसे दिखता रहेगा. ओके, for representing the same, I am taking a simply supported beam. Again, A, B a simply supported beam है. Okay, this is RA, this is RB. I've taken the same span, तो 10 ही ले रहा हूँ और C point ले रहा हूँ. C point at a distance of 4 meter from A and at a distance of 6 meter from B. And rectangular UDL कुछ ऐसे बता रहा हूँ. So this is a rectangular UDL. Okay, so this is a rectangular UDL, and the rectangular UDL intensity is again I have taken as 10 kilonewton per meter. Now be with the units. When you are concerned with the UDL intensity, it is in kilonewton per meter. Okay, now again you have to convert a rectangular UDL into a point load, and when you are concerned with the point load, it has point of action and the magnitude. Okay, now over here the point of action is center, again center of length का center है. Okay, now length में क्या बोल रहा हूँ वो भी समझ लो. So this is the length, rectangle का ये length है और ये breadth है. Okay, so length का center and magnitude, when you are concerned with the magnitude is nothing but area. Okay, so area rectangle का sorted है, it is length into breadth. ठीक है, तो resolve करके देखते हैं. So again I am simplifying this simply supported beam which has a span of 10 meter.
सिंपली सपोर्ट है इसलिए एंड सपोर्ट से आर ए एंड आर बी एंड देयर इज अ पॉइंट सी, सी पॉइंट है at a distance of 4 meter from A and at a distance of 6 meter from B. ओके, इवेंचुअली इसका सेंटर निकालना है तो ये समझ रहा रहेगा दिस इज नथिंग बट द लेंथ एंड दिस इज नथिंग बट द ब्रेथ. तो लेंथ इज 6 मीटर and the breadth is 10 kilonewton per meter. That is nothing but the rectangular UDL intensity. Okay, तो इसीलिए I have taken, अभी ये भी कुछ इसी तरह है. इन केस ऐसे डाउनवर्ड एरो है तो आपका इक्विवेलेंट डाउनवर्ड पॉइंट लोड रहेगा, और इन केस अपवर्ड एरो है, अपवर्ड एरो है सो आपका इक्विवेलेंट ये अपवर्ड पॉइंट लोड रहेगा. ओके, इसलिए मैंने आई टेकन द डाउनवर्ड पॉइंट लोड एंड द इंटेंसिटी दैट इज पॉइंट ऑफ एक्शन इज 3 मीटर and 3 meter. तो इधर से 3 मीटर पे लोकेटेड है. ओके, नाउ अबाउट द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड तो है एरिया एंड व्हेन यू आर कंसर्न्ड विद द एरिया, लेंथ है आपका 6 मीटर और ब्रेथ है आपका 10 किलो न्यूटन पर मीटर. तो मीटर मीटर कट होके ये फिर से 60 किलो न्यूटन मैग्नीट्यूड का रेक्टेंगुलर यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया. ओके, so when we are concerned with the types of load, we have done the point load, that is nothing but the simplest type of load. and point load को एक magnitude रहता है और point of action रहता है, वो देखा. then there is a UDL. UDL मतलब uniformly distributed load. तो उसके लिए ये स्पीड ब्रेकर जैसा दिखता है, that is nothing but the UDL. ये 6 मीटर उसका लेंथ है और यूडीएल इंटेंसिटी 10 किलो न्यूटन पर मीटर है. इवेंचुअली ये 6 into 10 कर दो तो 60 किलो न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड हो गया एंड पॉइंट ऑफ एक्शन सेंटर है. ओके, अगेन रेक्टेंगुलर यूडीएल में लेंथ का सेंटर इज द पॉइंट ऑफ एक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज एरिया, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ. Now we are starting with the UVL. UVL is nothing but uniformly varying load. And when you are concerned with uniformly varying load, तो कैसे represent करते वो भी देखते हैं. वो represent करने के लिए वापस I am taking a simply supported thing A, B. It has a span of 10 meter. RA, RB. There is a C point which is at a distance of 4 meter from A and at a distance of 6 meter from B. ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है देखना, विद द हेल्प ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की तरह है एंड यू हैव अ यूडीएल इंटेंसिटी, यूवीएल इंटेंसिटी as 10 kilonewton per meter. Okay, now when you are concerned with the further part, you need to simplify UVL into a point load. Okay, तो उसके लिए आपको point of action is now a centroid. Okay, and magnitude is area again. Now as we are dealing with a right angle triangle area का formula क्या है? It is half into base into height. And when you are concerned with the centroid, तो सेंट्रॉइड का लॉजिक समझ लो. अभी सेंट्रॉइड राइट एंगल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड मतलब ये लाइन है जो एक लैमिना को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है. मतलब क्या, इधर से काटा तो दोनों साइड सेम रहेगा. तो उधर आपका सेंट्रॉइड रहेगा. So this is your centroid. Okay, तो सेंट्रॉइड का लोकेशन भी देखना. अभी नाउ दिस इज द लेंथ. ठीक है, तो ये लाइन पे अगर फोकस किया जाए, दिस लाइन, ये लाइन पे अगर फोकस किया जाए तो देयर इज अ हाइट साइड एंड देयर इज अ पॉइंट साइड. तो हाइट साइड और पॉइंट साइड का लॉजिक इधर इंपॉर्टेंट है. नाउ सी ओवर हियर. सो दिस इज नथिंग बट द हाइट साइड. ओके, एंड ये देखा जाए तो दिस इज नथिंग बट अ पॉइंट साइड. ओके, नाउ
एज वी आर कंसर्न विद द फर्दर पार्ट, तो ये आपका जी का लोकेशन देखना, पॉइंट साइड से 2/3 रहता है, मतलब 2l/3, एंड हाइट साइड से 1/3 रहता है, दैट इज l/3। आपका बेसिक क्लियर चाहिए तो ही आप ये अच्छे से कर सकते हो, इसीलिए बेसिक पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। नाउ हाइट साइड से 1/3 और पॉइंट साइड से 2/3, ये लॉजिक बन रहा है सेंट्रॉइड का लोकेशन के लिए, ओके। तो इसीलिए आई एम सिंप्लीफाइंग अ यूवीएल इनटू अ पॉइंट लोड। तो क्या करें, सिंपल कर, सिंपल, ए और बी है तो बनेगा आर ए आर बी, सिंपली सपोर्टेड बीम, जो सिंपल पार्ट पहले ही कर रहे हैं, सी एट अ लोकेशन ऑफ 4 मीटर एंड 6 मीटर, ओके। अभी रही बात ये रेक्टेंगुलर यूडीएल की, या फिर सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल का ये हाइट साइड है, दिस इज द पॉइंट साइड। तो हाइट साइड से बेस बाय 3 आएगा और पॉइंट साइड से ये 2 बेस बाय 3 आएगा, ओके। तो आपका हाइट साइड से बेस बाय 3 आ गया तो 6/3 2 होता है, तो इसीलिए ये इधर से नजदीक आएगा, दैट इज 2 मीटर। एंड सी पॉइंट से 2 बेस बाय 3 मतलब 2/3 डिस्टेंस, तो 2 इंटू बेस है आपका 6, 2 इंटू 6 दैट इज 12/3, तो इधर से आपका आएगा 4 मीटर, ठीक है। फिर से वही लॉजिक, सब ये डाउनवर्ड एरोज है तो इसका इक्विवेलेंट भी डाउनवर्ड पॉइंट लोड ही रहेगा। इन केस ऐसे अपवर्ड एरो है तो इसका इक्विवेलेंट भी अपवर्ड पॉइंट लोड ही रहेगा, ओके। तो ये डाउनवर्ड पॉइंट लोड है। एंड व्हेन यू आर कंसर्न्ड विद द मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू, ये देखना बेस है 6 और हाइट है 10 किलो न्यूटन पर मीटर, तो 6 इंटू 10 किलो न्यूटन, 6 मीटर लिखता हूं, मीटर, तो मीटर is getting answer, 2 1 जा 3 जा 30 किलो न्यूटन is the magnitude of the UVL, ठीक है। तो हम लोग ने लोड वाइज क्या देखा है, पॉइंट लोड देखा, फिर यूडीएल देखा, फिर रेक्टेंगुलर यूडीएल देखा, आफ्टर दैट यूवीएल पे अप्रोच किया। यूवीएल का दिस बेसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका इनकेस ऐसे आ गया, ठीक है, तो ऐसे आ गया तो ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो इधर से आपका लोकेशन कितना रहेगा, 1/3, और इधर से रहेगा 2/3, ओके। 2/3 ऑफ द बेस, 1/3 ऑफ द बेस, ओके। तो हम लोग ने लॉजिक क्या देखा है, पॉइंट साइड से 2/3 डिस्टेंस, हाइट साइड से 1/3 डिस्टेंस, जी का लोकेशन, ये सेंट्रॉइड में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, but this is important. Again, we are starting with the last type, that is trapezoidal load, and when you are concerned with the trapezoidal load, I'm again taking the same, that is a simply supported beam AB, उसका span है 10 मीटर, simply supported है 10 मीटर, and there is a C point at a distance of 4 meter from A and at a distance of 6 meter from B, ठीक है। और क्या करते हैं, थोड़ा कॉपी कर लेता हूं, हाँ, तो ये सिंपल पार्ट सिंपल ही रहेगा। नाउ आई एम टेकिंग अ ट्रेपेजॉइड कैसे दिखता है, इट हैज 2 पैरेलल साइड्स, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रेपेजॉइड। तो ट्रेपेजॉइड को 2 इंटेंसिटीज रहेगा, तो इधर मैं ले रहा हूं चलो 15 किलो न्यूटन पर मीटर, और इधर मैं ले रहा हूं 10 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो लॉजिक समझो कि व्हेन यू आर कंसर्न विद अ ट्रेपेजॉइड, तो ये ट्रेपेजॉइड है,
व्हेन यू आर कंसर्न विद अ ट्रेपेजॉइड, तो उसका बेस 6 है, इधर 10 है और ये पूरा इज 15, ठीक है। तो इधर से इधर मैंने कनेक्ट किया तो इतना हो गया 10 क्योंकि पैरेलल है, और 15 minus 10 will be this distance, that is nothing but 5, ठीक है। Means when you are concerned with a trapezoidal load, it is getting divided into a UVL and a rectangular UDL, okay। तो UVL के वजह से एक फोर्स आएगा, एक पॉइंट लोड आएगा, एंड रेक्टेंगुलर यूडीएल के वजह से एक पॉइंट लोड आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ने डिवाइड किया into a rectangular UDL 6 meter 10 kilonewton per meter plus 6 meter and 5 kilonewton per meter, ठीक है। तो अभी व्हेन यू आर कंसर्न, अभी लॉजिक जान चुके हैं, वही अप्लाई करना है रेक्टेंगुलर यूडीएल का। रेक्टेंगुलर यूडीएल के वजह से जो लोड आएगा बराबर सेंटर में आएगा, तो इसीलिए बराबर सेंटर वाला लोड। सो दिस इज 3 मीटर, दिस इज अगेन 3 मीटर, ओके, बराबर सेंटर में आ गया। और रेक्टेंगुलर यूडीएल के वजह से जो आएगा दैट विल बी, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया आगे लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 6 इनटू 10, तो ये 60 किलो न्यूटन उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ओके। नाउ व्हेन आई एम कंसर्न्ड विद द यूवीएल, यूवीएल का लॉजिक क्या चल रहा था, हाइट साइड एंड दिस इज पॉइंट साइड, हाइट साइड से 1/3, मतलब ना सी हो भैया, हाइट साइड से 1/3 लिया तो ये डिस्टेंस आएगा 6/3 2 मीटर, और पॉइंट साइड दैट इज सी से 2/3, तो 6 इंटू 2 12 डिवाइड बाय 3, ये 4 मीटर। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्शन ड्यू टू द यूवीएल, ओके। एंड इसका half into base into height, that is half into base is 6 meter into height is 5, तो 1s are 3s are 5 3s are 15 kilonewton is the load, okay। so हम लोग ने क्या देखा कि ट्रैपेजॉइडल लोड की वजह से, ट्रैपेजॉइडल लोड की वजह से दो लोड्स आते हैं, ट्रैपेजॉइडल लोड की वजह से दो पॉइंट लोड, दैट इज नथिंग बट अ रेक्टेंगुलर यूडीएल से एक आएगा और यूवीएल के वजह से आ जाएगा। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ लोड, दिस इज द बेसिक्स अबाउट द टाइप्स ऑफ लोड, ओके। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जंप ऑन टू द टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो ये वैसे देखा जाए तो 4 ही टाइप्स के सपोर्ट है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सिर्फ 3 ही रहते हैं, दैट इज वीए वर्टिकल, वीए मतलब वर्टिकल है, एचए मतलब हॉरिजॉन्टल, और एम ए मतलब मूवमेंट, ओके। वर्टिकल मैंने अपवर्ड ही क्यों बताया, बिकॉज पॉजिटिव अपवर्ड रहता है, वैसे ही राइट साइड जाने वाला, एक्स एक्सिस में राइट साइड जाने वाला पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाने वाला नेगेटिव, तो इसीलिए राइट साइड वाला पॉजिटिव लिया। और मेरे साइन कन्वेंशन के हिसाब से मूवमेंट जो है, मूवमेंट इज क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव इसलिए एम ए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया, ठीक है। आपने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया या फिर एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया, वन एंड द सेम है, कुछ आंसर में डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ आपको प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है, ओके। नाउ सी ओवर हियर, हिंज सपोर्ट, व्हेन आई एम कंसर्न्ड विद द हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या फिर उसका सिंबल क्या है वो देखो, ओके। तो हिंज सपोर्ट ऐसे किया तो भी हिंज सपोर्ट है, ऐसे रिप्रेजेंट किया तो भी हिंज सपोर्ट है, ठीक है। तो ये दो टाइप से हिंज सपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ए ले लिया, ठीक है। वैसे ही व्हेन आई एम कंसर्न्ड विद द फर्दर पार्ट, चलो हिंज, हिंज हिंज मतलब क्या है, हिंज मतलब क्या है ये देखना, ये हिंज है, ये हिंज है, समझ रहे, मतलब क्या, मैं अलाउ किसको कर रहा हूँ, एम ए मतलब मूवमेंट को अलाउ कर रहा हूँ, समझ रहे, मूवमेंट को अलाउ कर रहा हूँ, ये हिंज है।
बट मैं इसको खींच नहीं सकता, खींचूंगा तो टूट जाएगा, बट ये खींच नहीं सकता, मतलब VA को मैं अलाउ नहीं कर रहा और HA को भी अलाउ नहीं कर रहा, सिर्फ मूवमेंट को अलाउ कर रहा हूं। सो दिस इज नथिंग बट हिंज सपोर्ट। और उसका फ्री बॉडी डायग्राम जिसको अलाउ नहीं कर रहे, जैसे VA को अलाउ नहीं कर रहे थे और HA को अलाउ नहीं कर रहे थे, सो दैट्स द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ हिंज सपोर्ट। तो वो कैसे दिखेगा देखना, ये A पॉइंट है, ये VA एंड ये HA, क्लियर। तो हिंज सपोर्ट का फ्री बॉडी डायग्राम, हिंज सपोर्ट कैसे पहचाना जाता है, तो ऐसे ऐसे रहेगा या फिर ट्रायंगल शेप रहेगा। ओके, सो व्हेन वी आर कंसर्न्ड विद द रोलर सपोर्ट, तो रोलर सपोर्ट ऐसे रिप्रेजेंट होता है या फिर विदाउट ऐसे, ओके। सिमिलरली ऐसे हिंज सपोर्ट है। तो ये तीन चीजों से हिंज सपोर्ट रिप्रेजेंट होता है, सॉरी, और रोलर सपोर्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस और दिस। तो आई हैव टेकन दिस एज अ B पॉइंट, ठीक है। तो आपने कॉफी टेबल के नीचे या फिर टी टेबल के नीचे वाला रोलर देखा रहेगा, रोलर खुद के अबाउट घूमता है, मतलब इसको अलाउ किया, ठीक है। रोलर हॉरिजॉन्टली भी घूमता है, तो इसको भी अलाउ कर दिया, बट रोलर को उठा दिया तो वो रोलर का कुछ काम है क्या, नहीं है, तो इसको अलाउ नहीं किया, इसीलिए ये FBD में आ जाएगा। तो इसका FBD कैसे रहेगा देखना, समझ लो, ये B पॉइंट है, तो सरफेस को परपेंडिकुलर, सरफेस को परपेंडिकुलर VB आएगा, क्लियर, सरफेस को परपेंडिकुलर VB आएगा। तो इंक्लाइंड रोलर भी यही कंसेप्ट के ऊपर लेके जाते हैं। तो आई हैव टेकन दिस एज 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे एक रोलर है, 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे रोलर है, ठीक है, इसको C पॉइंट लेता हूं। तो अपना कंसेप्ट क्या है, रोलर सपोर्ट है तो सरफेस को परपेंडिकुलर रिएक्शन आ जाएगा, तो सरफेस को परपेंडिकुलर रिएक्शन आ गया RC, ठीक है। और आपको इंस्क्राइब्ड एंगल ट्रायंगल तो पता है, मतलब क्या 90, इधर एक ट्रायंगल के अंदर 180 बैठ सकता है, तो ये बैठा 90 30, तो ये कितना रहेगा 60, तो ये 60 डिग्री हो गया, मतलब ये एंगल इज 60 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट आ गए, RC cos 60 जिसके साथ एंगल वो cos कंपोनेंट, एंड RC sin 60, तो इसके दो कंपोनेंट आ गए। बट इसको रिप्रेजेंट कैसे करते देखना, ये 30 डिग्री है, दिस इज योर रोलर C, और ये ऐसे आएगा, ये देखना, इसका पॉइंट ऑफ एक्शन ये है और इसका भी पॉइंट ऑफ एक्शन यही है, तो इसीलिए ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा, RC cos 60 डिग्री एंड RC sin 60 डिग्री। So this is nothing but how to, this is the free body diagram of inclined roller support। तो पेपर जब भी हार्ड सेट होता है तो inclined roller आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एंड द फिक्स सपोर्ट, तो फिक्स सपोर्ट को पहचानना कैसे है, ये फिक्स सपोर्ट का नोटेशन है, ठीक है। फिक्स सपोर्ट मतलब क्या, ये कुछ फिक्स है, ठीक है, जैसे ये फिक्स है, तो ये ना अपवर्ड उठा सकते हैं, ना हॉरिजॉन्टली उठा सकते हैं, ना घुमा सकते हैं, मतलब फिक्स्ड है, कोई भी डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा, तो दैट्स व्हाई फिक्स सपोर्ट आ गया। तो VD तीनों को अलाउ नहीं कर रहे, HD और MD। सो दिस इज नथिंग बट द बेसिक्स ऑफ बीम्स, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम एक 4 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते वक्त आपको सिर्फ याद रखना है कि अभी आपने रेगुलर अटेम्प्ट दिया, अभी KT अटेम्प्ट दे जा रहे हो, मतलब गलती को माफी नहीं मिलेगा, तो वो याद रखना है। तो आपको दिमाग में स्ट्रक्चर याद रखना है, स्ट्रक्चर ये देखना, सिंपल रखता हूँ स्ट्रक्चर, मतलब एक पेपर में एक आपका पेपर है, आपके हैंडराइटिंग के हिसाब से FBD के लिए जगह छोड़ना, ठीक है। FBD एग्जामिनर चेक करेगा वो परफेक्ट है, सेटिस्फाइड है,
तो उधर 3 मार्क्स दे के ही आगे का चेक होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा मूवमेंट अबाउट हिंज, उसमें क्लॉकवाइज पॉजिटिव मैंने पकड़ा है, आपने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव पकड़ा तो भी सेम ही आंसर आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ओके, जो मिथ है वो दिमाग से निकाल दो। सो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, फिर समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई। अगर इंक्लाइंड रोलर है तो ये रिजल्टेंट और थीटा का पार्ट आता है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम अभी देखते हैं। मतलब क्या है, ये स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूमेरिकल। मतलब क्या, स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट इन केटी एग्जाम। ठीक है, मतलब आपको ये जैसे ही आपने देख लिया कि बीम्स का न्यूमेरिकल है तो पहले दिमाग में ये कर दो, चलो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ थोड़ा जगह छोड़ देता हूँ, फिर बाद में आएगा समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट अ हिंज। हमेशा हिंज सपोर्ट पे ही लेना है, क्योंकि हिंज सपोर्ट पे 2 रिएक्शन 0 हो जाते हैं और आंसर जल्दी से मिल जाता है। ठीक है, हिंज मूवमेंट अबाउट हिंज ले लो, इसमें आपके साइन कन्वेंशन के हिसाब से जाना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मेरे ही साइन कन्वेंशन के हिसाब से जाओ, आपके साइन कन्वेंशन से गया तो भी सेम ही आंसर आएगा। एंड समेशन ऑफ एफ एक्स एफ वाई, उतना अगर इंक्लाइन रोलर है तो आगे का पार्ट आ जाएगा रिजल्टेंट और थीटा। ठीक है, हिंज सपोर्ट है तो आगे का पार्ट आ जाएगा आर और थीटा। ठीक है, तो ये देखना हर एक प्रॉब्लम, ये जो मुझे यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लिए लग रहा है, हैव टेकन द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम आप अच्छे से सॉल्व करो। ये सॉल्व करने के बाद आपको ये 3-4 प्रॉब्लम्स है एज अ होमवर्क, टेक इट एज अ होमवर्क और ये कर देना। ठीक है, इसमें कुछ कंसेप्ट्स है वो मैं बता देता हूँ, क्लियर करता हूँ। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी एज वी आर नोन विद द बेसिक्स। तो पहले क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ सी इसमें स्पेसिफिकेशंस क्या है वो देख लो। ए पे हिंज सपोर्ट है, बी पे ए पे रोलर सपोर्ट है, बी पे हिंज सपोर्ट है, देयर इज अ एल सेक्शन बीम, एल सेक्शन बीम है, ए टू बी अभी अपना यूवीएल एक्ट कर रहा है। यूवीएल का इंटेंसिटी देखना 4 किलो न्यूटन पर मीटर, इसका यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिसमैच हो जाता है। मतलब ये और ये करीब आ गए तो क्या हो जाता है, यूनिट से ही पहचान में आते हैं। तो यूनिट क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर। इसका देयर इज अ कपल है, कपल इज अ फ्री वेक्टर, मतलब उसको डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, वो भी याद रखना है। तो कपल का यूनिट है किलो न्यूटन मीटर, और यूडीएल या फिर यूवीएल या फिर ट्रेपेजॉइडल इंटेंसिटी का यूनिट है किलो न्यूटन पर मीटर। एक ये अलग से 10 किलो न्यूटन का लोड एक्ट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम बी, और ये एल सेक्शन के डी पॉइंट पे एक 20 किलो न्यूटन का 40 डिग्री पे इंक्लाइन लोड है। तो इसको भी रिजॉल्व करना है। तो मैं इसमें सबसे कांस्टेंट पार्ट क्या देखता हूं, वो उसका हम लोग एफबीडी बना देंगे, दैट इज नथिंग बट एल सेक्शन। ठीक है, तो एल सेक्शन बना लिया। ठीक है, एल सेक्शन में एक जगह ए पॉइंट है, देयर इज अ बी पॉइंट, सी पॉइंट है और डी पॉइंट। ठीक है, तो ए से स्टार्ट करें तो ए पे कौन सा है, रोलर सपोर्ट, तो रोलर सपोर्ट है इसीलिए एक ही परपेंडिकुलर टू द सरफेस वीए आ जाएगा। ठीक है, रोलर सपोर्ट पे सिर्फ वीए आ गया, मैं सपोर्ट पे ही ध्यान देता हूं। फिर बाद में 10 किलो न्यूटन का लोड है, 10 किलो न्यूटन का लोड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पे बी पॉइंट के लेफ्ट में 10 किलो न्यूटन का लोड है, मतलब ए टू बी ट्रेवल कर रहा था तब 10 किलो न्यूटन देख लिया। फिर बी पे हिंज सपोर्ट है इसीलिए वी बी और एच बी आ गया, बी बी एच बी आ गया। ओके, और बी पे और एक कपल है और कपल का इंटेंसिटी है 10 किलो न्यूटन मीटर। कपल इज अ फ्री वेक्टर, मतलब उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है, फोर्स को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है पर कपल को नहीं करना है। ठीक है, फिर बाद में ये जो बी टू सी डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर,
C to D डिस्टेंस है, दैट इज अगेन 2 मीटर, और D पे गया तो देयर इज अ इंक्लाइन लोड, तो इंक्लाइन लोड है तो इसके ये रिजॉल्व करेंगे तो एक समेशन ऑफ एफएक्स, और मतलब एफएक्स और एफवाई कंपोनेंट आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट, तो जिसके साथ एंगल वो कॉस कंपोनेंट और जिसके साथ एंगल नहीं वो साइन कंपोनेंट। तो इसीलिए सो दिस इज 20 cos 40 डिग्री एंड दिस इज 20 sin 40 डिग्री, ठीक है। और लास्ट में अभी यूवीएल रिजॉल्व करना बाकी है। तो यूवीएल का कंसेप्ट तो सिंपल है, ये हाइट साइड है, ये पॉइंट साइड है, मतलब बी से 2/3 डिस्टेंस और ए से 1/3 डिस्टेंस भी, क्योंकि अपना हाइट साइड से 1/3 डिस्टेंस रहता है और पॉइंट साइड से 2/3। तो वही लॉजिक पे चलेंगे, तो ये देखना हाइट साइड के नजदीक आ जाएगा और डिस्टेंस 1/3 रहेगा, तो 6 मीटर है, तो 6 मीटर का 1/3 दैट इज 6/3, 2 मीटर आ जाएगा। और बी पॉइंट से 2/3 दैट इज 6 into 2 12 divided by 3 4 मीटर, ठीक है। और इसका आ जाएगा हाफ into base into height से will get the magnitude, and when you are concerned with the magnitude half into base देखना 6 मीटर है और हाइट है आपका 4 किलो न्यूटन पर मीटर, तो मीटर मीटर कट होके 2 1 जा 3 जा 4 3 जा 12 किलो न्यूटन का आपका मैग्नीट्यूड है। तो ये देखना मैं जब भी सॉल्व कर रहा था तो एफबीडी पे थोड़ा स्लो हो गया, बिकॉज ये फोकस्ड रहना चाहिए, क्योंकि किस्टों में मार्क्स ले लो, डिवाइड 8 मार्क्स इंटू 3 and 5, 3 मार्क्स पहले टारगेट करो, 3 मार्क्स परफेक्ट होने पे मूव टू द नेक्स्ट 5 मार्क्स, तो वैसे करके 8 मार्क्स का लॉजिक बनता है। ओके तो अभी ये मेरा हिंज सपोर्ट है, इतना तो समझ रहा है, चलो ये हिंज सपोर्ट है तो मूवमेंट अबाउट हिंज सपोर्ट ही लेना है, ठीक है। तो वी हैव टेकन summation of movement about hinge, that is b equal to 0, इसमें clockwise पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव आपने उल्टा लिया तो भी आंसर सेम आएगा। ओके ना सी हो भैया। चलो फोर्स कितने हैं वो गिनते हैं, ठीक है। मूवमेंट का कंसेप्ट क्या है, मूवमेंट अगर बी पॉइंट से ले रहे हो और बी पॉइंट से जो भी फोर्स पास हो रहा है, फोर्स हाँ मूवमेंट नहीं बोल रहा हूं मैं, कपल नहीं बोल रहा हूं, फोर्स पास हो रहा है वो जीरो मोमेंट देगा। मतलब अभी बी से क्या क्या पास हो रहा है, एच बी और वी बी, तो ये देने वाले जीरो मोमेंट, तो इनको पकड़ना ही नहीं है। अभी बचे कितने मोमेंट देखना, अभी वी ए बचा 12 किलो न्यूटन बचा, 10 किलो न्यूटन बचा, फिर बाद में 20 cos 40 बचा और 20 sin 40 बचा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये फोर्स है और एक कपल है, दैट इज फ्री वेक्टर, तो उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 5 + 1 6, तो ये 6 कपल मतलब मूवमेंट्स आ जाएंगे। तो हम लोग पहले कपल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कपल लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो कपल को सिंपल है, ये इसको सिर्फ देखना है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। चलो मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, आपके हिसाब से क्लॉकवाइज नेगेटिव रहेगा तो माइनस ले लो, बाकी कुछ नहीं, आंसर सेम ही आएगा। ओके तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो +10, मैंने डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं किया है, और भले ही वो बी पे है तो भी वो फ्री वेक्टर है तो वो आएगा ही। ओके आफ्टर दैट नाउ सी अभी आपको क्या करना है वो सिंपल तरीके से देख लो। अभी आप VA की बात कर रहे हो, तो VA को ऐसे ऊपर जा रहा है तो उसको B के अबाउट घुमा दो, B के अबाउट घुमा, ठीक है। तो घूमेगा तो क्लॉकवाइज ही, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव है, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना, मतलब इधर से इधर तक A से B तक, दैट इज 2 + 4 6, तो क्लॉकवाइज है इसीलिए पॉजिटिव, so I have taken clockwise as positive, VA is the force and a perpendicular distance is 6, ठीक है। आगे से स्टार्ट करेंगे तो
12 किलो न्यूटन को भी बी के अबाउट घुमा दो, बी के अबाउट घुमा दो, तो ये बी के अबाउट घुमा दिया तो वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव रहता है, तो -12 इज द फोर्स। और देखना ये पॉइंट से आपको बी तक डिस्टेंस देखना है, दैट इज 4, तो into 4, ठीक है। सिमिलरली ये 10 है, 10 भी एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है, तो 10 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मैंने नेगेटिव साइन, 10 इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी वैरी हो गया, दैट इज 1.5, तो 1.5, ठीक है। वैसे और दो बचे हैं, उसका भी ये कर लेते हैं। तो ये देखना, ये 20 कॉस कंपोनेंट है ना, इसको बी के अबाउट घुमा दो। ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बट ये बी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 कर रहा है, तो -20 cos 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, ठीक है। सिमिलरली ये वाला भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, तो सिंपल -20 sin 40 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है, ठीक है। एंड इक्वेटेड टू 0, तो ये पूरे इक्वेशन में सिर्फ ये अननोन है, आप शिफ्ट सॉल्व से निकाल दो। मतलब क्या, मेरे पास भी कैलसी है, ये पुराना वाला है, बट आंसर तो ये भी दे देगा, ठीक है। शिफ्ट सॉल्व मेथड आपको पता रहना चाहिए, और समझ जाता है, अभी केटी अटेम्प्ट तक तो समझ ही जाता है, ठीक है। तो वैसे करके आप शिफ्ट सॉल्व करेंगे, तो इवेंचुअली आपको वो आंसर मिल जाएगा। वो आंसर से मतलब क्या है, वो वीए का वैल्यू रहेगा, वो वैल्यू सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करना है, और मतलब आपको और 2 मार्क्स एड ऑन हो गया, मतलब 3 मार्क्स तो पहले थे ही, और 2 मार्क्स एड ऑन हो गया। तो शिफ्ट कैलकुलेट इक्वल टू 2 बार किया तो भी हो जाता है। इवेंचुअली आपको VA का वैल्यू 18.225 मिलेगा, 225 तो 23 लिख देता हूं किलो न्यूटन, बात खत्म, मुझे VA का मिल गया। ओके, सो वी हैव गॉट द VA वैल्यू, और सबसे फर्स्ट वैल्यू आ गया है 3 + 2, 5 मार्क्स मिल गया, ठीक है। क्योंकि ये मूवमेंट को 2 मार्क्स रहता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी देखो, बिकॉज ये आपका केटी अटेम्प्ट है और यही लास्ट अटेम्प्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी बचा क्या, समेशन ऑफ एफ एक्स, तो एक्स में ये देखना, एक्स में कौन है, एच बी है, और ये 20 cos 40 है। हम लोग का साइन कन्वेंशन क्या है, राइट साइड जाने वाला पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाने वाला नेगेटिव, तो राइट साइड एच बी जा रहा है तो वो पॉजिटिव रहेगा, लेफ्ट साइड 20 cos 40 जा रहा है वो नेगेटिव रहेगा। तो आपका क्या, एच बी माइनस, चलो 20 cos 40 डिग्री इक्वल टू 0, तो एच बी का वैल्यू आपको आ जाएगा, वो माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 20 cos 40, उसका कुछ 15.32 किलो न्यूटन आता है एच बी का वैल्यू। ओके, सो एच बी का वैल्यू आ गया। सिमिलरली वीबी का, वीए और वीबी का वैल्यू आ जाएगा, तो ये देखना, वीए का तो आ चुका है, वीबी का आ जाएगा। तो अभी समेशन ऑफ एफ आई मतलब ऊपर नीचे जाने वाले देखना है, मतलब ऊपर जाने वाला पॉजिटिव, नीचे आने वाला नेगेटिव, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव अगेन, तो इसको देखना है, ठीक है। तो वी है -12 -10 प्लस वीबी +20 कितना है, sin 40 इक्वल टू 0। तो अभी टेंशन नहीं लेना है, 2 अननोन है तो टेंशन मत लो, वीए का वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, इवेंचुअली वीबी का वैल्यू आ जाएगा, तो वीबी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, किलो न्यूटन में आ जाएगा, बिकॉज सभी फोर्स किलो न्यूटन में ही है।
यूनिवर्सिटी वाले यूनिट में ही आपको टेंशन देते हैं, तो यूनिट सॉर्टेड रखना है। अगर सब किलो न्यूटन में है तो किलो न्यूटन में ही रखो। एक किलो न्यूटन और एक न्यूटन में है तो न्यूटन वाले को किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ऐसा यूनिट किलो न्यूटन है। किलो न्यूटन मीटर में ही रखना है ज्यादा करके। तो अभी वही मैं कर रहा हूँ कि VA का वैल्यू 18.23 -12 -10 प्लस x, x मतलब इधर का x है, 20 sin 40 इक्वल टू 0। शिफ्ट कैलकुलेट, कैलकुलेट पे वैल्यू आ जाता है VB का वैल्यू। ठीक है, देखते हैं उधर जा रहा है तो 22 माइनस 20 साइन 40 और -18.23, तो माइनस में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो माइनस ही लिख लो। ठीक है, 0857 है, 856 लिखता हूँ, 8586 लिखता हूँ क्योंकि 857 है, 857 आ रहा है तो 86 लिखता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद इधर तो अभी 5 मतलब 5 कैसे मार्क्स है देखना, 3 मार्क्स मिल गए FBD में, मोमेंट में 2 मार्क्स मिल गए, समेशन ऑफ FX और FY में मतलब 5 प्लस इधर 1 मार्क्स मिल गया, और रिजल्टेंट और थीटा भी निकालना है। तो रिजल्टेंट क्या चीज है वो भी देख लो। तो ये RB का है, बिकॉज HB और VB है तो RB, RA और VA रहेगा तो सॉरी HA और VA रहेगा तो RA। ठीक है, HB स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर, और इसका थीटा का फॉर्मूला सिंपल रहेगा, अंडर रूट ऑफ थीटा का वर्टिकल, वर्टिकल क्या रहता है VB, तो tan इनवर्स ऑफ VB बाय HB, तो इधर से थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो फिनिशिंग भी अच्छी तरह देना है। पहले तो 15.32 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होने वाला, 9.086 ब्रैकेट स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आंसर, तो इसका वैल्यू आता है तो 17.11 किलो न्यूटन, और थीटा भी देखते हैं, tan इनवर्स ऑफ FY, FY मतलब वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब VB है, VB मतलब -9.086 डिवाइड बाय HB 15.32, तो 30.67, ये माइनस आ गया मतलब क्लॉकवाइज आ गया। ठीक है, तो मैंने क्लॉकवाइज लिख दिया, माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज नेगेटिव रहता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहता है। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट यूनिवर्सिटी न्यूमेरिकल, वो भी डिटेल में आपको समझा रहेगा होपफुली विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। थोड़ा और एक बड़े लेवल का प्रॉब्लम लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना, अगेन इधर कुछ बड़ा सा कुछ अलग सा दिख रहा है पर डरना नहीं है, अपना बेसिक क्लियर रहेगा ना तो डरना नहीं। ठीक है, तो हम लोग को सेग्रीगेट कैसे करना है, पहले रीडिंग करो। रीडिंग कैसे करोगे, चलो ये बीम ये सिंपली सपोर्टेड तो नहीं है तो कोई दिक्कत तो नहीं देने वाला है, सिंपली सपोर्टेड है, ओवरहैंग है, कोई दिक्कत नहीं देगा, सिर्फ आपको वो FBD पहले निकाल दो। ठीक है, तो जैसे A to B है तो ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 0.5 0.5, ये भी 3 मीटर है, ये 30 डिग्री है, 12 किलो न्यूटन है, और ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, मतलब ये ट्रेपेजॉइड का लेफ्ट साइड का इंटेंसिटी है और 20 किलो न्यूटन पर मीटर। और ये देखना 2 UVL एक साथ बने, ये 2 UVL है। ठीक है, तो डर नहीं जाना है ये, और ट्रायंगल कैसे आ गया, तो ये 2 UVL से सॉल्व करना, एक का बेस है 1 मीटर और एक का बेस है 2 मीटर। ठीक है, और देखा जाए तो ये इन सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, आराम से सॉल्व होगा, कुछ नहीं है इसमें, शुरू होती ही खत्म न्यूमेरिकल है।
ठीक है। सो दिस इज ए पॉइंट, इज अ बी पॉइंट। ए पॉइंट पे आपका मस्त में वी और एच ए है। ठीक है, मतलब क्या है, देयर इज अ हिंज सपोर्ट और इधर रोलर सपोर्ट है, इसलिए वी बी डाल दिया। सरफेस को परपेंडिकुलर ही रख रहा हूं। फिर बाद में थोड़ा अपने लॉजिक के लिए लगते हैं ये ऐसे, ये देखना। चलो ये है 1 मीटर, ये है 2 मीटर। फिर 2 मीटर के बाद और एक पॉइंट है, इधर ऐसे आ रहा है 12 किलो न्यूटन का लोड जो इंक्लाइंड है। तो इसके दो रिएक्शंस रहेंगे, ये पॉइंट रिजोल्यूशन होगा। और जिसके साथ एंगल वो कॉस कंपोनेंट, मतलब क्या, 12 cos 30 डिग्री और 12 sin 30 डिग्री। ठीक है। फिर बाद में फिर से इधर से स्टार्ट हो रहा है आपका ट्रेपेजॉइडल लोड। ठीक है, और उसका ना डिस्टेंस भी लेके रखते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, ये 0.5 मीटर, ये 0.5 मीटर, ये 3 मीटर। ठीक है, तो पहले मतलब आपको सिर्फ ये बताना है, ऐसे मत देखना ये छोटा ये बड़ा है तो ये मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता। सिंपल हिसाब रहता है, ये इंजीनियरिंग ग्राफिक्स नहीं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। तो आपको सिर्फ बताना है कि भाई ये इधर से इधर तक 0.45 मीटर है या फिर 0 जितना भी है, वो डिस्टेंस बराबर से बता दो। ठीक है। तो हमने रिजोल्यूशन कर दिया। अभी सिर्फ यूवीएल और दो यूवीएल और ट्रेपेजॉइडल को रिजोल्व करना बाकी है। ठीक है, तो सिंपल है, सिंपल ही रखते हैं। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इट इज डिवाइडेड इनटू अ लेफ्ट यूवीएल एंड अ राइट यूवीएल। ठीक है, लेफ्ट यूवीएल पे कंसंट्रेट करें तो उसका बेस है 1 मीटर। तो अपना लॉजिक क्या बनता है कि ये आपका पॉइंट साइड है या आपका हाइट साइड है। हाइट साइड से बेस बाय 3, पॉइंट साइड से 2 बेस बाय 3, मतलब क्या, 2/3। तो 0.66 आता है। तो ये देखना ऐसे डाउनवर्ड आएगा, ये डिस्टेंस आपका 0.66 और ये डिस्टेंस आपका 67 कर देता हूं ताकि दिक्कत ना हो, 0.34। तो पहले तो वी हैव सॉर्टेड दिस पार्ट, मतलब क्या, उसका पॉइंट ऑफ लुक एक्शन सॉर्ट कर दिया। पॉइंट ऑफ एक्शन सॉर्ट करने के बाद हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे ये वाले का। तो हाफ इंटू बेस कितना है 1, इंटू हाइट है 10, तो 1 जा तो ये 5। तो ये 5 किलो न्यूटन वाला यूवीएल रिजोल्व करते हैं। सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, बेसिक क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली अभी फिर से ये राइट हैंड साइड वाले इस पार्ट पे जाते हैं। तो ये इसका ए पॉइंट, इसका क्या है, हाइट साइड, और ये इसका पॉइंट है। तो हाइट साइड से बेस बाय 3 रहेगा। बेस बाय 3 मतलब 2/3, मतलब 0.67। तो ये देखना हाइट साइड के नजदीक ले लिया, इधर से इधर तक 0.67 है, और इधर से इधर तक 2/3, मतलब 2/3, तो 2 × 2 4/3, तो 1.34 है। 1.33 आ रहा है बट 1.34 लेना है। ठीक है, तो ये बना। तो इसका हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालेंगे, तो हाफ इंटू बेस है 2, इंटू हाइट तो वही है 10, तो 2 कट होके ये 10 किलो न्यूटन का लोड हो जाता है। ओके, तो अभी ट्रेपेजॉइड के पास जाते हैं, और हम लोग ने बेसिक में देखा ट्रेपेजॉइड की वजह से 2 पॉइंट लोड आता है, एक रेक्टेंगल की वजह से आता है। तो इसको इधर ही मस्त में रिजॉल्व करते हैं। तो ये 10 है, पूरा 20 है, तो ये बचा भी कितना रहेगा, 10 ही रहेगा। ठीक है, तो एक ट्रायंगल की वजह से आएगा जिसका बेस तो सेम है 3 और 10, और एक रेक्टेंगल की वजह से आएगा जिसका बेस तो सेम है 3 और 10।
ठीक है, सी और 10। तो पॉइंट लोड, रेक्टेंगुलर लोड, ये सबसे उसका पॉइंट ऑफ एक्शन क्या रहता है, सेंटर। तो सेंटर पे मैंने रेक्टेंगल की वजह से जो आने वाला है वो ले लिया 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। ओके, ये करने के बाद अभी व्हेन यू आर कंसर्न विद द फर्दर पार्ट, तो आप रेक्टेंगल की वजह से ले रहे तो एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब देखना 3 इंटू 10, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ 30 किलो न्यूटन। ठीक है, फिर बाद में मैंने देखा ये ट्रायंगल वाला पार्ट, ट्रायंगल का हाई साइड बी है, मतलब बी के नजदीक आएगा, तो बी के नजदीक ले लिया। ठीक है, अभी ये देखना, ये डिस्टेंस इसका बेस बाय 3 रहेगा, क्योंकि बेस 1/3 डिस्टेंस रहता है, बेस बाय 3 मतलब 3/3, तो ये 1 मीटर हो गया, और 3 में से 1 माइनस करे तो 2 बेस बाय 3 मतलब 2 मीटर हो गया। उसके बाद ये इसका बेस है 3 एंड हाइट है 10, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 3 इंटू 10, तो दिस इज 15 किलो न्यूटन एंड दिस कंप्लीट्स माय एफबीडी। तो एफबीडी आपका सॉर्टेड हो गया। एफबीडी होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मतलब हिंज का मोमेंट अबाउट हिंज निकाल दो। मोमेंट अबाउट हिंज मतलब मोमेंट अबाउट ए। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0। ठीक है, ये करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में अभी जो हो रहा है वो पूरा देखना है। मतलब अभी देखना ए से क्या क्या पास हो रहा है। ए से पास हो रहा है एच ए से पास हो रहा है वी एच ए से पास हो रहा है 12 cos 30, तो उसका मोमेंट नहीं लेना। मोमेंट किसका लेना है, 5 10 12 साइन 30 30 15 वीबी, इनका ही मोमेंट लेना है। तो मतलब क्या, वीबी अननोन है, वीबी मिल जाएगा। ठीक है, अभी मोमेंट अबाउट ए, ए मतलब हिंज है, तो ए के अमाउंट 5 को घुमा दो, तो घूम रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज, तो इसीलिए माइनस साइन 5 इज द फोर्स इनटू, इधर देखना बराबर से ये पॉइंट लोड से ए तक का डिस्टेंस कितना है 0.34, तो इनटू 0.34। ठीक है, सिमिलरली सिंपल है, सिंपल ही रखते हैं। ये एक ए के अबाउट 10 को घुमा दो, 10 को तुम घुमा दो तो घूमेगा तो क्लॉकवाइज ही, तो क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव 10 इनटू अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से ये पॉइंट लोड तक, दैट इज 0.67। ठीक है, सिमिलरली 12 साइन 30 को भी घुमा दो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घूमेगा तो पॉजिटिव घूमेगा, तो 12 साइन 30 इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर से ध्यान देना इधर से इधर तक जाना है, मतलब 2 प्लस 0.5, तो ये मस्त में हो जाता है 2.5। तो इसका भी मोमेंट शॉर्टेड है, ये मोमेंट ये देखना, ये मोमेंट है। अभी बचा 30, 30 को क्यों छोड़ना है, 30 को भी ले लेते हैं, तो प्लस 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कैसे घूम रहा है, ये भी ए के अबाउट क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। अभी इधर से इधर तक डिस्टेंस गिनना है, मतलब इधर से इधर तक गया 2, इधर से गया 3, 3 के आगे गया 1.5, तो 4.5 इन टोटल गया, तो इंटू 4.5। ठीक है, फिर से 15 भी तो क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, 15 भी तो क्लॉकवाइज ही घूम रहा है अबाउट ए, तो इधर तक 4.5 था, 4.5। ठीक है, चलो फिर से गिनना पड़ेगा, इधर तक जाना पड़ेगा, मतलब क्या 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 मतलब 3 प्लस 2 5, तो इनटू 5। और बचा अभी ये वी बी ए के अबाउट देखना कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस वी बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब पूरा घूम गिन लो 2 1 3 3 3 6 इंटू 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ऐसे ही हम लोग ने आराम से 3 प्लस 2 5 मार्क्स हासिल कर दिए हैं, पर कैलकुलेशन करना बाकी है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। -5 इंटू 0.34 ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस 10 इंटू 0.67 ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस 12 साइन 40 इंटू 2.5
प्लस 30 इंटू 4.5 प्लस 15 इंटू 5 और डिवाइड, चलो डिवाइड बाय 6 कर लेते हैं, ठीक है, वो आदत है, वो ही आदत रखते हैं। माइनस एक्स इंटू 6 इक्वल टू 0, शिफ्ट कैलकुलेट इक्वल टू, और इवेंचुअली आपको आ गया है 39.04705 किलो न्यूटन लिखता हूँ। सो वी हैव गॉट द वीबी वैल्यू, 5 मार्क्स मिल गए। सिंपल प्रॉब्लम है, सिर्फ कंसेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। ये करने के बाद समेशन ऑफ एफ एक्स में क्या है, एच ए है और 12 है, बस इतना ही है। तो एच ए का फटाक से वैल्यू आ गया, एच ए माइनस 12 कॉस 30, कॉस 30 है ना, हाँ, माइनस 12 कॉस 30 डिग्री इक्वल टू 0। तो एच ए का वैल्यू आ जाएगा 12 कॉस 30, 10.39 किलो न्यूटन एच ए का मस्त में वैल्यू आ गया। सिमिलरली वी ए के लिए जाएंगे तो वी ए समीशन ऑफ एफ आई में जाएंगे ना, तो सिंपल है, ये नीचे आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव, तो वो सब एडअप करना है, सम करना है। मतलब क्या, -5 प्लस वी ए -10 -12 साइन 30 डिग्री, और कौन है -30 -15 प्लस वी बी इक्वल टू 0। तो वी बी का वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट करो, वी ए निकाल दो, खत्म कर दो बात, खत्म कर दो, सिंपल है। तो ये देखना, -5 प्लस वी ए का तो वैल्यू है नहीं है, प्लस एक्स -10 -12 साइन 30 -30 -15 15 है भाई, 15 प्लस एक्स, एक्स नहीं, वीबी का वैल्यू 39.05 इक्वल टू 0, शिफ्ट कैलकुलेट 2 बार, वी ए मिल गया 26.95, ठीक है, वी एच ए मिल गया। तो अभी क्या हो जाएगा, इधर आर ए आ गया, एच ए स्क्वायर प्लस वी ए स्क्वायर, वही लॉजिक, और थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ वी ए बाय एच ए। तो अंडर रूट ऑफ एच ए स्क्वायर 10.39 का स्क्वायर प्लस 26.95 का स्क्वायर, तो आर ए का वैल्यू मिल जाएगा। कैलसी पे तो आपको निकालने आता है, वही निकालना है, प्लस 26.95 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आंसर, सो वी हैव 28.88 किलो न्यूटन। तो आर ए आ गया, वैसे ही थीटा भी आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ वी ए 26.95 अपॉन 10.39, तो tan इनवर्स ऑफ 26.95 डिवाइड बाय 10.39, तो थीटा इज 68.91 किलो न्यूटन। तो ये देखना, सेकेंड सम भी बहुत ही जल्दी हो गया, शुरू होती खत्म है सम। अभी वैसे ही यूनिवर्सिटी में ये दिखाना है कि ऐसे कुछ सम आ गया ना, आप शेयर है तो आप जो सॉल्व करने वाले हैं ना, उस सवा शेयर की तरह सॉल्व करना, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है देखना, इधर कंसेप्ट यूज होता है, मतलब मैंने क्या देखा, ये 5 है, ये भी 5 है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.7 प्लस 0.7, इंजीनियर का एक 1.5 कैलसी लगता ही है, 1.4 है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.4। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो कपल मतलब क्या, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कपल में ये पूरे हैं, ये जो क्रॉस टाइप दिख रहा है, उसको ये पार्ट निकाल दो, ये पार्ट निकाल दो, और इसको कपल से रिप्लेस कर दो। तो मतलब क्या, एग्जामिनर को समझ जाएगा कि इसके कंसेप्ट क्लियर है,
ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है तो टेंशन ही नहीं है, तो निकलना ही निकलना है। तो ये देखना ए बी सी और डी और लास्ट में ई। ठीक है, तो आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व करो, थोड़ा जूम करता हूँ। ये है हिंज सपोर्ट, ये है रोलर सपोर्ट, ये एक सर्कल और ये, तो ये रोलर सपोर्ट है। ओके, तो कैसे रोलर सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर दिया इधर, सॉरी रोलर सपोर्ट है, ये तो एफबीडी है, वी ए और एच आ जाएगा और इधर सिर्फ वी आ जाएगा। ओके, डिस्टेंसेस भी लिख देता हूँ, ये आपका 0.7 मीटर है, ये आपका 0.8 मीटर है, ये भी आपका 0.8 मीटर है, ये भी 0.7 मीटर है। ओके, तो यूडीएल को पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करो, तो अपना सिंपल फंडा है, मल्टीप्लाई क्या करना है, यूडीएल इंटेंसिटी किलो न्यूटन पर मीटर में रहता है और लेंथ ऑफ यूडीएल 0.7, तो 0.7 इंटू 0.7, 0.7 का स्क्वायर हो गया 0.49। तो मुझे क्या समझा कि बराबर सेंटर पे 0.49 किलो न्यूटन का लोड आएगा और ये डिस्टेंस क्या रहेगा 0.35 एंड दिस विल आल्सो बी 0.35। ठीक है, वैसे ही राइट साइड वाला डी वाला पार्ट कर लेते हैं। डी वाला पार्ट तो वही है 0.8 इंटू 0.7 बराबर है ना, हाँ 0.56, तो बराबर इधर 0.56 किलो न्यूटन रहेगा एंड ये डिस्टेंस क्या रहेगा 0.35, 0.35। ठीक है, मीटर में है। और सबसे इंपॉर्टेंट इधर दिखा दो कि आपका ये देखना, ये क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना है 0.7 मीटर। तो कपल कैसे घूम रहा है, तो कपल देखना ये क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो घूमेगा कैसे, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज कपल है और इसका कपल का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 5 इंटू 0.7, 5 इंटू 0.7, तो 5 इंटू 0.7 तो 3.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इधर आ गया 3.5 किलो न्यूटन मीटर, समझा। सो दिस कंप्लीट्स द एफबीडी 3 मार्क्स सीखे और कहते फटाक से विदाउट वेस्टिंग टाइम हिंज मोमेंट का पार्ट कर लेना, उधर भी मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो भूलते हैं वो पार्ट लेना है, मतलब कपल 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 ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हम लोग का पॉजिटिव, आपका नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 3.5 कपल इज ए फ्री वेक्टर, इससे नहीं मल्टीप्लाई करना है। हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट को ढूंढा तो मोमेंट अबाउट क्या है वो लिखना भूल गया, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल टू 0। इसके बाद ये वाला पार्ट 3.5 कपल लिख दिया, फिर बाद में ये 0.49 अबाउट ए क्लॉकवाइज घूम रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.35 है, तो प्लस क्लॉकवाइज के लिए 0.49 ये फोर्स है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.35, तो ये कपल मोमेंट हो गया 0.49 का। सिमिलरली डायरेक्टली प्लस 0.56 इज द फोर्स, क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव है और आपको इधर से इधर तक गिनना है, मतलब 0.7 प्लस 0.8 प्लस 0.8 प्लस 0.35, तो इधर से इधर तक आ गए। ठीक है, तो कितना हो रहा है देखते हैं, 0.7 प्लस 0.8 प्लस 0.8 प्लस 0.35, इवेंचुअली आपको मिलता है 2.65 एंड माइनस वीई इनटू पूरा डिस्टेंस मतलब क्या 0.7, ये देखना 0.7 0.8 0.8 0.7 है, तो 0.7 इंटू 2 प्लस 0.8 इंटू 2 3 इक्वल टू 0, तो इधर से वीई का वैल्यू मिल जाएगा, गेट द वैल्यू ऑफ वीई।
तो v का वैल्यू ले देते हैं, फिर से शिफ्ट सॉल्व 3.5 प्लस ब्रैकेट में 0.49 इंटू 0.35 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस ब्रैकेट में 0.56 इंटू 2.65 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस v की जगह आपने ब्रैकेट में x डाल दिया अल्फा और ब्रैकेट क्लोज करके इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज अगेन अल्फा और ब्रैकेट क्लोज सॉरी अल्फा नहीं सिर्फ ब्रैकेट क्लोज डाल दो इक्वल टू 0 शिफ्ट कैलकुलेट तो आपको 1.7185 किलो न्यूटन में वी का वैल्यू आ रहा है। तो यू हैव द वी वैल्यू और वैसे ही आपको समेशन ऑफ एच ए में जाना है तो एच ए में जाना है तो एच ए सिर्फ अकेला है उसके साथ x में कोई नहीं है सिर्फ va का वैल्यू आ जाएगा तो va विल बी va कितना है va कैसे निकालते हैं va ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ फोर्सेस को ही देखना है तो va माइनस 0.49 माइनस 0.56 प्लस वीई और वीई का वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे यू विल गेट द वीए वैल्यू ठीक है तो 0.49 प्लस 0.56 माइनस 1.7185 फिर से माइनस आ रहा है कोई दिक्कत नहीं माइनस है तो माइनस ही लिखो तो माइनस 0.6685 तो माइनस को हटा के मैं डाउनवर्ड साइन बताता ठीक है तो इधर नेक्स्ट स्टेप दैट इज रिजल्टेंट का पार्ट नहीं आएगा सो दिस इज द थर्ड सम ये देखना बहुत ही स्पीड से कर रहे हो क्यों बिकॉज बेसिक क्लियर है और ये लास्ट सम है ये लास्ट सम खत्म होने पे कुछ आपको डिस्कस करेंगे ये कुछ डिस्कस करेंगे फिर बाद में आपको सॉल्व करना है ठीक है नाउ सी चलो फ्री बॉडी डायग्राम निकाल देते फ्री बॉडी डायग्राम के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है जैसे ए पॉइंट चलो इसको ये बी है ना इसको सी बोलते हैं इसको डी बोलते हैं दिस इज बी उसके बाद सी पॉइंट है फिर बाद में डी पॉइंट है फिर बाद में बी बोलते हैं और ई ठीक है एंड वी हैव द डिस्टेंसेस रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस है वो ले लेते हैं तो ए टू सी 2 मीटर है सी टू डी 6 मीटर है डी टू बी 2 मीटर है एंड बी टू ई 3 मीटर है जो सिंपल है वो पहले दिखा दो दैट इज 80 किलो न्यूटन वाला सिंपल है ओके एंड व्हेन यू आर कंसर्न्ड विद दिस सपोर्ट दिस इज अ हिंज सपोर्ट एंड दिस इज अ इंक्लाइंड रोलर तो इंक्लाइंड रोलर को अच्छे से करना है तो आपका VA आ गया और आपका HA आ गया और उसके बाद सी पॉइंट तक पहुंच गए सी पॉइंट पे फिर से क्या है ट्रेपेजॉइडल लोड है मतलब क्या ये 20 है पूरा 50 है मतलब बट नेचुरली ये 30 रहेगा मतलब एक UVL बन रहा है एक रेक्टेंगुलर UDL बन रहा है ये 6 मीटर है ये भी 6 मीटर है चलो ये 20 है ये 30 है मतलब आसानी रहेगी तो पहले सबसे पहले रेक्टेंगुलर यूडीएल वाला पार्ट करना है तो सिंपल है सिंपल ही रखते हैं तो बराबर सेंटर पे है सेंटर का मतलब क्या सी टू डी का सेंटर तो 3 मीटर ठीक है और ये रेक्टेंगल वाला पार्ट है तो 6 इंटू 2 20 दैट इज 120 किलो न्यूटन का लोड है ठीक है 120 किलो न्यूटन का लोड है और ट्रायंगल की बात की जाए तो हाइट साइड इसका डी पॉइंट के पे है तो डी पॉइंट के नजदीक आएगा सो डी पॉइंट के नजदीक एंड ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट तो इधर से बेस बाय 3 1/3 और पॉइंट साइड से 2/3 हाइट साइड से 1/3 वही बेसिक पे चलेंगे और 6 ही है तो 2 मीटर ये 4 मीटर और इसका जब ये निकालते हैं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हाफ इंटू बेस मतलब हाफ इंटू 6 ये 3 हो गया 3 इंटू 30 90 किलो न्यूटन तो
ये भी रिजॉल्व हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट जैसे इंक्लाइंड रोलर, चलो इंक्लाइंड रोलर को ना थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। इंक्लाइंड रोलर, इंक्लाइन रोलर है, कितने डिग्री पे इंक्लाइन है, 30 डिग्री पे, तो बराबर परपेंडिकुलर वी भी आएगा। बट ये 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो अकॉर्डिंग टू इंस्क्राइब्ड एंगल ट्रायंगल ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 रहेगा। तो ये आपका 60 हो गया, मतलब ये आपका 60 हो गया। तो इसके दो कंपोनेंट, वी बी कॉस 60 डिग्री एंड दिस विल बी वी बी साइन 60 डिग्री। और इसको आप कैसे दिखा देंगे ये देखना, इधर ही दिखा देंगे। सो दिस इज वी बी cos 60 डिग्री and this is VB sin 60 degree. So this completes our FBD and eventually we are into the last sum और hinge है आपका A, ठीक है, hinge है आपका A। तो अभी समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट ए इक्वल टू जीरो, इसमें क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है, तो यू विल स्टार्ट विद कपल है। कपल कोई है क्या, नहीं है, मतलब क्या डायरेक्ट फोर्सेस से स्टार्ट कर दो। तो ये देखना, ये 120 भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, 90 भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, 80 भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, वी भी तो ए से ही पास हो रहा है, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब एक ही एंटी क्लॉकवाइज फोर्स है। वीबी का परपेंडिकुलर 120 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना, 2 + 3 5, इधर से इधर तक 5 है। 90 का कितना रहेगा, 2 + 4 6, तो इधर से इधर तक 6 है। और 80 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा, 2 + 6 + 2 दैट इज 10, 10 + 3 13। और वीबी साइन 60 का कितना रहेगा, 10, क्योंकि 6 + 2 + 2 10 एंटी क्लॉकवाइज। तो वही मूवमेंट लिखते हैं, 120 इंटू 5 प्लस, इसलिए पॉजिटिव, तो 90 इंटू, चलो 2 ना, हाँ 90 इंटू 4 + 6 minus Vp sin 60 is the force into perpendicular distance 10 minus minus नहीं, plus 80 into 13 equal to 0, तो you will get the value of Vp। Vp का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट में 120 इंटू 5 प्लस ब्रैकेट में 90 इंटू 6 माइनस ब्रैकेट में x साइन 60 इंटू 10 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस 80 इंटू 13 ब्रैकेट कंप्लीट इक्वल टू 0, shift calculate equal to, तो मस्त में you will get the value, so it is 251.724, मैं 73 लिखता, ठीक है। VB का आ गया। नाउ गो फॉर समेशन ऑफ fx में ये देखना, HA है, पॉजिटिव साइड जा रहा है, VB cos नेगेटिव साइड, तो माइनस VB cos, VB की जगह मैंने 251.73 cos 60 डिग्री इक्वल टू 0, तो विल गेट द वैल्यू ऑफ HA। HA आ जाएगा, ठीक है, किलो न्यूटन में, बिकॉज ऑल द फोर्सेस आर इन किलो न्यूटन। तो 251.73 cos 60 वैल्यू इज नथिंग बट 125.86, ठीक है। सिमिलरली समेशन ऑफ Fy के लिए गए, तो VA माइनस टू 120 माइनस 90 प्लस VB साइन 60 माइनस 80 इक्वल टू 0, ठीक है। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ VA। इवेंचुअली लास्ट आपको आने वाला है, लास्ट जो स्टेप है वो आने वाला है। सो VA निकालना है, तो VA 120 प्लस 90 मैं राइट साइड डाल रहा हूँ, माइनस VB का वैल्यू है 251.73 साइन 60 प्लस 80 प्लस 80,
to your 71.99 kilonewton is the value of VA. So RA क्या रहेगा, HA square plus VA square. तो अंडर रूट ऑफ 125.86 का स्क्वायर प्लस 71.99 का स्क्वायर. 72 लिखा तो भी चलेगा. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ RA, that is 125.86 का स्क्वायर प्लस 71.99 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आंसर दैट इज 144.99. तो आप मस्त में 145 किलो न्यूटन लिख सकते हो RA. Okay, and when you're concerned with theta, tan inverse of vertical, that is 71.99 upon horizontal 125.86. So tan inverse of 144 या फिर 145 लिखते ना, 145 नहीं, सॉरी 71.99 72 है, डिवाइड बाय 125.86 ब्रैकेट कंप्लीट. You have the value of theta, that is 29.76 degree. ठीक है. So this completes the last sum as well. तो ये लास्ट सम करने के बाद ये कुछ अनोखे अद्भुत सम है, वो आपको करना है, सिंपल है. ठीक है. पहले तो क्वेश्चन रीड करना है, दैट सिंपल. ठीक है. तो फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन एट A, द फोर्स P if the reaction as B is 60 किलोन्यूटन. क्या बोला है, मतलब इधर सिंपल VB का 60 किलोन्यूटन दिया है. ठीक है. इधर क्या आ जाएगा, VA HA. ओके, रेस्टॉल इधर तो पता है बराबर बेस 1/3 पे, मतलब 1 मीटर, और इधर 2 मीटर पे आ जाएगा. और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के हिसाब से 12 इंटू 3, 12 3 36 रहता है. सो दिस इज 36 किलो न्यूटन. तो आपको क्या बोला है, फाइंड द रिएक्शन एट ए, मतलब क्या RA और थीटा निकालना है, मतलब उसके लिए आपको VA निकालना पड़ेगा HA. सो दिस इज अ थोड़ा अलग सा सम, वो आपको करना है. ठीक है. और P का भी फाइंड, P भी निकालना. ठीक है, P भी निकालना आ जाएगा, अगर कंसेप्ट क्लियर है आ जाएगा. सिमिलरली ये देखा जाए तो दिस इज अ रोलर सपोर्ट, ये सिंपल सम माना जाता है. इधर स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस पे मतलब क्या, परपेंडिकुलर RB आएगा. ठीक है. RB आएगा तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा. तो RB cos 60 डिग्री एंड RB sin 60 डिग्री. पर आप लिखेंगे कैसे, देखना, आप ऐसे लिखेंगे, दिस इज RB sin 60 डिग्री एंड दिस इज RB cos 60 डिग्री. ठीक है. तो ये लॉजिक समझ गया, ये तो आपको समझ रहा रहेगा. दिस इज VA एंड दिस इज HA. ठीक है. और ये वर्टिकल ट्रेपेजॉइडल लोड है, तो उसको भी रिजॉल्व करना. ठीक है. तो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. एंड व्हेन यू आर कंसर्न विद बीम्स, तो इतना करके गया देन इट इज मोर देन इनफ. अभी आपको मैकेनिक्स का स्ट्रेटजी कैसे रखना है, मैकेनिक्स जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ, जितना भी कंटेंट दे रहा हूँ, सो वो रिवाइज कर देना और ट्राई टू सॉल्व दिस 5 क्वेश्चंस. ये 5 क्वेश्चंस आ गए मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया. कंसेप्ट क्लियर हो गया मतलब ये 8 मार्क्स कंफर्म हो गया. ठीक है. तो वैसे लॉजिक चाहिए. हर रोज आज से वीडियो आने वाला है. सैटरडे संडे ज्यादा आएगा, बट रोज आएगा, ये मेरा गारंटी रहेगा. बट ये एक मतलब स्लोली कॉन्कर करना है, और अबाव 50 मार्क्स ये अपना टारगेट है. थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे.